if everyone can keep your mic shut unless you are speaking, so that everyone can get proper voice and video qualities. Namaskar and good morning, everybody. Good morning. For our second week session of the Arbiter Camp, idea that was inspired by and Matri ji, तुमको थोड़ा mute करा, Matri ji. Idea that was inspired by All India Chess Federation and very aptly put together by our Grandmaster Abhijit Kunteji. Today is a very interesting day. I say interesting because at least two of our members of the chess family have recovered from COVID. There is some good news we have on that front. So therefore, a little bit to cheer about amidst the gloom that we are facing. Today we have a very important and distinguished gathering of guests who have come to guide all of us and also to inaugurate the second session. We have international arbiter Dharmendra Kumar ji, who also is the Arbiter Commission Chairman of AICF and the Deputy President of the SARC Chess Association. We have A.K. Verma ji, who is the Chess in School Commissioner for All India Chess Federation. And coincidentally, we also have our own Chess in School Chairman and Commissioner Girish Chitale ji, who is our Vice President MCA, and I would say one of the biggest supporters of the game of chess in this part of the country. Along with Girish Chitale ji, we also have Narendra Firodia ji, who is our Vice President representing the largest district in Maharashtra, which is Ahmednagar. And he has been doing exemplary work in the field of chess and also in a lot of other social circles. Koti Bhaskar ji, I'm sure all of us also know. He's an old timer in chess, one of from Western Maharashtra, I think, along with Girish Chitale ji, one of the biggest chess lovers, as I would call him. And Bilare ji from Mumbai, also a vice president with MCA, but has been one of the chess warriors. We have COVID warriors. So in Maharashtra Chess Association, we also have a category of chess warriors who have really fought hard and worked very hard for the development of chess. And our Honorable Secretary Niranjan Godbole ji. So I welcome all of you to this session and the inauguration of this week's session. Before I start, I would read something that I read early this morning about chess. It says that tactics is knowing what to do when there is something to do. Strategy is knowing what to do when there is nothing to do. So I think as arbiters, this is the biggest thing that we learn in terms of how to monitor the strategies that people are playing and how to make sure that the game is played in the right spirit. Without taking much time, I think we have a lot of distinguished people to guide us. I will request Girish Chitale ji to welcome Dharmendra Kumar ji, Verma ji, Koti Bhaskar ji, Narendra Firodia ji, and Bilare ji on behalf of MCA. And then we would like Dharmendra Kumar ji to guide us because he is not only a chess lover but also an international arbiter. He has, I think, one of the biggest experiences as an arbiter. So we are expecting Dharmendra Kumar ji to guide us, and also Verma ji on the Chess in School program and how arbiters can play an important role in this program. So over to you, Girish Chitale ji, to welcome our distinguished guests. Thank you, Mr. President. On this August gathering, on the occasion of inauguration ceremony of Arbiters Camp and #3, I welcome Honorable Dharmendra Kumar ji, who has honored
to be here and guide us. Definitely, his experience and his position will take Maharashtra, this camp as well as chess movement as arbiter plays a major role in any tournament to the level, uh, to highest level, I can say. And this Maharashtra Chess Association Arbiters Camp probably will become a national event in coming years. I also welcome Mr. Varmaji. Uh, of course, I am also representing chess in school in Maharashtra Chess Association. So it will be keen for me to get connected and get guidance from you how to move. We can move ahead this movement in schools. Those schools are closed now, but they are open online. So we can connect these people online, and your guidance and your presence here will be definitely a welcome for us and very useful for us. So I welcome Verma sir as well. I welcome Koti Bhaskar sir, who is a true chess lover, a chess moment in himself kind of thing. So not only in Sangli but across Maharashtra, he goes all over to have express his chess love, I can say, and works for that. And I welcome him. Uh, of course, Bilare sir is kind of uh, very particular for doing the things, and as president said, a warrior in chess. So I welcome him for this program. I thank and welcome Maharashtra Chess Association's all dignitaries who have, including Mr. President himself, Siddharthji and Godboleji, who has arranged and hosted this series of arbitration camp, and also Abhijit Kunteji, who has coordinated and inspired a lot of MCA movements to this August gathering. Narendra Firodia, definitely a true friend of mine. He is over here, and he is also a very good torch bearer, kind of, in chess movement in Maharashtra, particularly. So I welcome him on behalf of Maharashtra Chess Association for this arbiter camp. I welcome all the arbiters who are participating in this camp, and all the coaches who are going to coach them uh, for this camp. So I welcome all, even the media persons who will be taking care of, due exposure to this good activity in social media as well as other media. So I welcome all, and I'm handing over to Siddharthji for next uh, program. Thank you, Girishji. And before I have Dharmendra Kumarji guide us and also give his views, Dharmendraji, I want to inform you that in a very short time, our arbiters have worked literally day in, day out, and we have managed 180 registrations. And not only that, the last week when we had the camp, we had one of the best response. So it was not just quantitative, but also qualitative. So when I was talking to our coaches, they felt inspired that there is so much interest. And in a subject like arbiter, which is a non-glamorous subject as far as chess is concerned, the players always get majority of the screen space and also the coaches. But the response that we got was very encouraging, and that actually has prompted us to work along with AICF to see if we can do this whole arbiter event on a bigger scale. How can we put a little bit of glamour to the whole arbiter process? So Dharmendra Kumarji, over to you. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, धन्यवाद आपको। और सबसे पहले सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम जितने भी हमारे उपस्थित गेस्ट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, और धन्यवाद महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन को और इसके सभी पदाधिकारियों को। आपने इस शानदार आयोजन में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। और
निश्चित ही आपने अभी जैसा बताया कि इस कैंप के लिए 180 पार्टिसिपेंट्स ने खुद को रजिस्टर्ड किया है। ये निश्चित ही न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के लिए भी ये बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि किसी स्टेट में हमारे चेस लवर्स, वो प्लेयर्स, कोचेज और सारे लोग आर्बिट्रेशन के लिए इतना इंटरेस्ट दिखला रहे। और स्टेट आर्बिटर्स कैंप में 180 लोग जमा हैं। ये आज का जो दौर चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से आर्बिटर्स की भूमिका बेहद खास हो गई है। पहले के समय में और अब में चीजें काफी बदल गई हैं और निश्चित रूप से इसमें आर्बिटर्स का वर्क फोर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो दोनों लेक्चरर हैं हमारे, स्वप्निल बांसोद और विवेक सोहानी, ये काफी टैलेंटेड और काफी एफिशिएंट इंटरनेशनल आर्बिटर हैं हमारे। और मुझे उम्मीद है कि सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत फायदा होगा इनके होने का। मैं इनसे जो लेक्चरर हैं इनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर या सब्जेक्ट इनके साथ शेयर ना करें। ग्रास रूट लेवल पर बेसिक जो आर्बिटर्स की जरूरतें होती हैं टूर्नामेंट्स के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, हमें नहीं मालूम आपने क्या सिलेबस कवर किया है इनके लिए, लेकिन आप फोकस्ड उसी पर रहें कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है। बहुत टाइटल रेगुलेशन और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशन पढ़ाकर इनको कोई फायदा नहीं है, समय खराब होगा। अभी जितना समय दे रहे हैं, मैंने सुना वो अभिजीत कुंटे जी बता रहे थे कि शायद 16 घंटे का समय एक कैंप के लिए दिया जा रहा है। 16 घंटे बहुत अच्छा समय है और निश्चित रूप से मैं सराहना करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की और लेक्चरर्स की कि आप 16 घंटे का लेक्चर इनके साथ शेयर कर रहे हैं। 16 घंटे हम लोग फिडे आर्बिटर सेमिनार में शेयर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। और इतने समय में यदि उन चीजों पर हम फोकस करें जो बहुत बेसिक है, तो हम एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं स्टेट के लिए। और महाराष्ट्र नो डाउट बहुत एक्टिव स्टेट रहा है बहुत वर्षों से, और यहाँ जितनी एक्टिविटीज होती है, यहाँ हमें और भी आर्बिटर्स चाहिए और एक्टिव टीम चाहिए। अभी का जो समय चल रहा है, मैं इसको मेंशन करना चाहता हूँ, इस पेंडेमिक में चीजें शिफ्ट होने की कगार पर है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अभी का जो दौर है, हम लोग भी रात दिन लगे हुए हैं इस प्रयास में कि ओवर द बोर्ड जो टूर्नामेंट होते थे वो पिछले साल 1.5 साल से तकरीबन बंद है। और अभी जो निकट भविष्य में कुछ संभावना भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि हम लोग क्या कर पाएंगे। तो इन बातों को लेकर न सिर्फ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन बल्कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन, एशियन चेस फेडरेशन हर स्तर पर लोग इस प्रयास में है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है हमारे पास। अभी फिडे ने भी इसको एक्सेप्ट किया और हम लोग ऑनलाइन मोड विद सुपरविजन एंड हाइब्रिड मोड पर शिफ्ट किए है। रेगुलेशन हमने क्रिएट किया है, फिडे ने क्रिएट किया है हाइब्रिड के लिए और ऑनलाइन टूर्नामेंट्स के लिए विद सुपरविजन। तो अभी क्या है कि पहले के जो आर्बिटर्स होते थे, पहले के आर्बिटर्स को ये टेक्निकल चीजों से बहुत वाकफियत नहीं होती थी, इसकी जरूरतें भी नहीं होती थी। मुझे याद है कि 98, 99 तक हम लोग कंप्यूटर से कुछ भी नहीं करते थे। मतलब उसी समय हमने 44 यूज करना शुरू किया था, स्विस 44 वगैरह पेयरिंग के लिए। बाकी कुछ भी नहीं था। क्लॉक भी था तो मैनुअल क्लॉक हुआ करता था। भिलारे भाई हैं हमारे, उनको याद होगा, रशियन क्लॉक हम लोग यूज करते थे, बस उसी से शतरंज चलती थी। कोई डिजिटल क्लॉक नहीं था, कोई पेयरिंग प्रोग्राम नहीं था। और चेस में कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग कहीं था ही नहीं। मैनुअल कार्ड से पेयरिंग होती थी, रशियन क्लॉक होता था और इतनी घड़ियां नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन पिछले 2 दशकों में चीजें काफी बदल गई हैं और अब जो हमें आर्बिटर्स भी चाहिए वो भी ऐसे चाहिए जो आज के समय के साथ अप टू डेट हों, टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर हों। और
मुझे नहीं मालूम कि ये सिलेबस में है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये लेक्चरर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक थोड़ा सा इनको ब्रीफिंग जरूर कीजिएगा, अगर सिलेबस में ना हो तो भी, कि इनको ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड के बारे में एक इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा कि ये क्या है और इसकी मॉडलिटीज क्या है, ये काम कैसे करता है और इसकी उपयोगिता क्या है, आज के समय में ये प्रासंगिक क्यों है, ये जरूर बतलाएं इनको। क्योंकि ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट्स के लेक्चर ऑब्वियसली आप दे रहे होंगे, वो होगा, आगे भी होगा, लेकिन आज के समय में हमारी उपयोगिता है। और यदि हाइब्रिड मोड आने वाले समय में यदि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन शुरू करने में सफल हुई तो हमें बहुत आर्बिटर लगेंगे और हमें बहुत आर्बिटर्स की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा देखे कि महाराष्ट्र एसोसिएशन के इस प्रयास से इतने सारे आर्बिटर्स, इतना बड़ा वर्कफोर्स क्रिएट हो रहा है महाराष्ट्र में, और निश्चित रूप से हमें ऐसे वर्कफोर्स की आवश्यकता पूरे देश में है। क्योंकि यदि हम हाइब्रिड मोड शुरू करेंगे तो हर सेंटर पर हमें आर्बिटर्स चाहिए होंगे, और आप में से जो लोग भी आर्बिटर्स को प्रोफेशनली भी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आने वाले समय में इस तरह से चीजें तेजी से बदल रही हैं। ऑनलाइन चेस हो या हाइब्रिड चेस हो, दोनों में आर्बिटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, काफी पड़ेगी। और जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं या जो तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, उसमें आने वाले समय में चेस ऑर्गेनाइजेशन में आर्बिटर्स की भूमिका बहुत बढ़ने वाली है, इनके काम भी बहुत बढ़ने वाले हैं, और हमें आर्बिटर्स की जरूरत भी बहुत लगने वाली है। तो इसलिए मैं लेक्चरर से भी अनुरोध करता हूं कि इनको हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड के बारे में जरूर बतलाएं, क्योंकि आने वाले समय में शायद हमें इनकी आवश्यकता लगे। और अभी आप स्टेट आर्बिटर्स का कैंप कर रहे हैं, और निश्चित ही जल्द ही हम उम्मीद करते हैं आप नेशनल आर्बिटर्स का कोर्स अटेंड करेंगे, आप फिडे आर्बिटर बने, आप इंटरनेशनल आर्बिटर बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ जितने भी हमारे आज जिस गेस्ट मौजूद हैं, चिताले साहब और जो सिद्धार्थ भाई भिलारे जी, वर्मा साहब हमारे चेसिन स्कूल के चेयरमैन हैं, आज वो मौजूद हैं यहाँ। और अभी सिद्धार्थ भाई ने बताया कि वहाँ चिताले जी महाराष्ट्र चेस के चेसिन स्कूल के कमिश्नर हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है, और चेस इन स्कूल में भी अभी ज्यादा वो प्रकाश डालेंगे इस पर, लेकिन चेस इन स्कूल में भी आर्बिटर्स की भूमिका है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिव वर्कर्स हैं, उनको या तो वो चेस कोच हो या चेस इन स्कूल के लिए जो इनरोल हो रहे हो, आर्बिटरशिप का बेसिक रेगुलेशन, लॉज ऑफ चेस, ये चीजें उनको जरूर जाननी चाहिए। यदि आप किसी चेसिन स्कूल प्रोग्राम के तहत यदि आप किसी स्कूल को भी ज्वाइन करते हैं, तो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्कूल लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का आई थिंक सर का इंटरनेट का इशू है, कुछ तो डिस्कनेक्शन हो गया है। हाँ, आई थिंक Can we call him and see? So I will just call him and see. just call and check. Yeah, meanwhile, can we shift to Verma sir? Yes. I think Namaskar, Verma ji, and welcome to this session. I think मैं मंत्रमुग्ध हो गया था actually to listen to Dharmendra bhai and his pearls of wisdom, as I would say. हमारे जो arbiter coaches हैं, I'm sure they must be listening with open ears. तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। वर्मा जी, आपसे गाइडेंस की we are looking forward to. तो प्लीज हमें थोड़ा चेसिन स्कूल के माध्यम से और आर्बिटर्स का इम्पोर्टेंस कैसे उसमें बढ़ सकता है, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू सर।
Mr. Mayur, who is President MCA, Mr. Godbole, Secretary MCA, Grandmaster Abhijit Kunte, Mr. Bilare, Mr. Chitle sir, who is going to be the CIS Commissioner of Maharashtra. It's a wonderful Mr. Sohani, Mr. Dharmender Kumar, who is the Chairman Arbiter Commission, and dear all arbiters. I'm happy to be here for this function because in the coming days, arbiters' roles are going to be very important, very, very important. Because when we are teaching the chess to any child or to anyone, we are providing the great service. We are providing justice to our society, because we are going to create the intellectual force. There are numerous advantages of the chess, which we all are, I think, knowing that, like we develop memory, concentration, patience, intelligence, maturity level, and 5% marks in the academics. That's why we are keeping more than 68 countries are there in which chess is in curriculum. There are few countries where there are option, either you select math or chess. So chess, so you can, we all can understand the importance of the chess. So definitely we are doing the justice to the society. We are providing something. And when I usually say to everyone, whenever we are teaching a child, a single child also to chess, we are bringing him in the chess, we are doing the great service. Above all, so we are doing the justice, and arbiters are going to do justice with all these players. So your role, arbiters' role, are going to be most important. I'll tell one thing, that coaches, those who are going for the training in the schools, of course, they will be our face and they will be going to the schools and all. But unless we have the tournaments, unless we have the competition among the students, this is not going to happen. This is because children will come and they will go also. So arbiters' roles are going to be very, very crucial, and they will be really backbone in this, because each schools, I am saying not only district, taluka and states, each school will should have the one arbiter. Later on it will come, because arbiters' role, unless we keep the arbiters, so if there is no competition, people are not going to stay in the chess. Idea is to bring the students in the chess. Idea is to retain them also. Idea is to promote them also. And ultimately, what is the advantage of the chess? That they will own it. That is biggest advantage, that any person is learning chess, he has to become a good human being and good citizen of the country and the world. So with this basic idea only, three things, I usually say that, okay, for the three things we are teaching the chess and all, that you see, life is not easy for anyone. For me, you, Bill Gates, Ambani, anyone. And we all handle, and chess handles, and chess teaches us to handle all these activities. So with this great and noble cause, we try to impart the training to as many students as possible. And really, my sincere thanks to MCA, who has recently been recognized by All India Chess Federation, is doing the wonderful. And they are organizing it, because I saw the activities of the earlier activities also, that okay, they have done the many seminars, and their activities, their plans are wonderful. So all this credit goes to MCA, Mr. Mayur sir, Mr. Godbole, Mr. All the office bearers of Maharashtra, and a special thanks to Mr. Abhijit Kunte. So I'll tell that arbiters are going to be very crucial, as they will do the fair play, and they will do the justice to the players and all. This is one field where we are not having the many quality arbiters in the India previously, but the way Maharashtra and All India Chess Federation is taking up, so it's going to be very it's going to be a wonderful thing for the Indian chess also. So I wish you all the best. Kindly do well and do the justice to the chess. Thank you. Jai Hind. Thank you, Verma ji. And I think one thing I can definitely promise you, that Maharashtra will continue to do the work in chess. We always, use the hashtag chess first. So whatever happens, chess always is first.
everything else can wait, or everything else can take a back seat. So we are very, very committed to chess. And like you rightly said, we have Abhijit Kunteji with us. He is not only a chess player, but he has a unique quality where he can mix or he can blend between administration, players, and also in terms of coming up with novel ideas, and that ability to bring people together. He's the reason, I think, why Girish ji, myself, even Narendra Firodia ji are part of chess today. So I think we are all very committed, and we will definitely take this forward. With Girish ji and our team, we have this dream of reaching at least 1,000 schools in the Chess and School program. So we definitely are on the course. And thank you for your guidance. I think Dharmendra Bhai has also rejoined. He got disconnected in between. But Dharmendra Bhai, thank you for your pearls of wisdom, and also your guidance to the teachers on this new online platform जो आपने रोशनी डाली, और ये आने वाले युग का सत्य है, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल में ही काम होना है. तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और आपसे थोड़ा और सुनना चाहेंगे, तो आप अगर थोड़ा और मार्गदर्शन कर दे तो देन वी विल मूव ऑन विद रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. हाँ बिल्कुल. सबसे पहले सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. तो मैं फोकस कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है. आर्बिटर्स का कैंप है, तो जाहिर सी बात है कि आर्बिटर्स की रोल, इनकी भूमिका और इनके लेक्चर्स, स्टडी, इस पर अपेक्षा होगी मुझसे सुनने की भी. तो मैंने इसलिए बताया कि लेक्चरर को हमारे जितने भी आर्बिटर्स अभी इस कैंप को अटेंड कर रहे हैं, उनको किन चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए, और आने वाले समय में हमारे आर्बिटर्स की उपयोगिता कितनी बढ़ने वाली है, किन क्षेत्रों में बढ़ने वाली है. हो सकता है कि एक समय आए, अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, शायद आने वाले समय में ओवर द बोर्ड के साथ हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन मोड को भी एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए. ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट भी चले, और उसमें कुछ पार्टिसिपेंट हो सकता है अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन मोड पे या हाइब्रिड सेंटर में बैठकर उस टूर्नामेंट को ज्वाइन करें. इन तमाम परिस्थितियों में आर्बिटर्स की जरूरतें बढ़ेंगी, लेकिन डेफिनेटली हम इफिशिएंट आर्बिटर की हमें जरूरत पड़ेगी. चीजें बदल रही हैं. लॉज ऑफ चेस के बहुत सारे आर्टिकल ऑनलाइन चेस में स्किप हो रहे हैं. अभी जो नए फिडे ऑनलाइन रेगुलेशन आए हैं, उसमें लॉज ऑफ चेस के बहुत सारे आर्टिकल स्किप हुए. अभी ऑनलाइन चेस होने की वजह से कंप्यूटर में प्लेइंग प्लेटफॉर्म पर जो फीचर्स हैं, उसमें बहुत सारे लॉज हमारे स्किप हो रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड रेगुलेशन है. इरेगुलरिटी, इलीगल मूव, 3-fold रिपीटेशन, 50 मूव रूल, ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन हैं जो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर आने के बाद आपको स्किप होंगे. लेकिन आर्बिटर की भूमिका इससे कम नहीं होती है, इसकी जिम्मेवारियां कम नहीं होती हैं, उनकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं. क्योंकि यदि आप एक सुपरवाइजर के रूप में आप एक आर्बिटर होते हैं या लोकल चीफ आर्बिटर होते हैं, तो आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ती हैं. तो ये नए सारे एडिशन है आर्बिटर्स के लिए, और मैं इसको ये कहूँगा कि आज के समय में आर्बिटर एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है. आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले, 25 साल पहले जब हम लोग आर्बिटर होते थे और कहते थे कि हम आर्बिटर हैं, तो मुझे समझ में आता था. आज तो देखकर लगता है कि हम लोग एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो चीज़ों को मैनेज करते हैं. तो जितने भी हमारे आर्बिटर्स यहाँ मौजूद हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, इनको ये जानना समझना चाहिए कि आने वाले समय में इनकी भूमिका क्या होगी, और खुद को टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर बनाएं. प्लेइंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानें, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जानें, इनको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में जानें. ये भी समझ लें कि लेक्चरर अभी 16 घंटे के कोर्स में आपको सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं. मुझे विश्वास है कि ये आपके जो दोनों लेक्चरर हैं, ये बहुत इफिशिएंट हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं और बहुत अच्छा समय देंगे अपना. लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है कि आप सारी चीज़ों को कवर कर लें.
तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस कैंप को निकलने के बाद आप अपनी थोड़ी तैयारी खुद से करें, और जो चीज आपके लेक्चरर्स ने यहाँ कोर्स के दौरान बतलाया, खुद से उसकी प्रैक्टिस करें, खुद से उसकी स्टडी करें। टूर्नामेंट्स में अभी आपको यदि जहाँ भी कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करने का मौका मिलता है, आप जरूर करें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। आप रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। चेस इन स्कूल प्रोजेक्ट पर भी अभी वर्मा जी बात कर रहे थे, मैंने सुना। ऑब्वियसली चेस इन स्कूल प्रोग्राम के लिए भी जितने लोग जाएंगे वहाँ उनको आवश्यकता होगी इन चीजों की। हो सकता है स्कूल्स में आप इनरोल कर लिए जाएं, या स्कूल आपको अपॉइंट कर ले और स्कूल ही आपसे डिमांड करे कि सर हम अपने स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं या हाइब्रिड मोड पर करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक्टिविटी उनकी चलती रहे। तो आपको आवश्यक होगा कि आप इन चीजों से फैमिलियर रहें और इन चीजों को सीखें। और आप में से जो कोई भी एफिशिएंट और टैलेंटेड आर्बिटर निकलेंगे, हम फीडबैक लेंगे आपके लेक्चरर से कि वहाँ पर कौन से ऐसे आर्बिटर्स थे जो बहुत जिनमें पोटेंशियल दिखता हो, और निश्चित रूप से हो सकता है हम उनको ऊपर भी मौका देंगे इस माहौल में काम करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा कुछ बेहतर सीख सके। और इन्हीं बातों के साथ पुनः महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, चिताले साहब, भिलारे साहब, सेक्रेटरी गोडबोले साहब और कोठावरी जी, और फाइनली हमारे मित्र अभिजीत कुंटे जी, जो विजनरी हैं, एबल हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। मैं उनका फैन रहा हूँ, एक ग्रैंड मास्टर के अलावा मैं उनका फैन रहा हूँ। इस बात के लिए हमेशा ऑब्जर्व किया है मैंने, जब भी उन्होंने पुणे में बहुत सारे इवेंट्स करवाए, उनकी क्रिएटिविटी का फैन रहा हूँ मैं। आप लोगों को ये अपने पर्सनल नोट पर मैं शेयर करता हूँ। बाकी हमारे उनके बीच बाकी भी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनके क्रिएटिविटी का फैन रहा हूँ। वो जितने विजनरी हैं, जितना अच्छा प्लान करते हैं, इमेजिन करते हैं और चीज़ों को, इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूँ। और इस बात के लिए मैं स्पेशली उनका बिल्कुल फैन हूँ। एक ग्रैंड मास्टर के रूप में फैन होना वो अलग है, लेकिन निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजर के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इज परफेक्ट, और मैं उनको पसंद करता हूँ। वो आपके साथ हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में और हमारे जो भाई साहब हैं सिद्धार्थ जी, इनकी लीडरशिप, ये इन्होंने जब से अभी महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन फिर से अभी एक्टिव होकर काम कर रहा है, आपने जितनी तेजी से और जितनी सक्रियता के साथ महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन को दिखलाया है, कोविड चेकमेट 19 के लिए भी, चेकमेट कोविड-19 के लिए भी आपने जितना सक्रिय योगदान दिया है, हम उसके लिए आभारी हैं आपके, पूरे महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन के। और आपके, आप बहुत एक्टिव रहे हैं निश्चित रूप से सर, थैंक यू सो मच। और बहुत हेल्प किया है हमारे खिलाड़ियों को और ये फंड जनरेट करने में। सो ओवरऑल एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद और इस शानदार आयोजन के लिए बधाई। दोनों लेक्चरर को मेरी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करें आप लोग, आने वाला समय आपका है। और जितने भी हमारे आर्बिटर्स यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप सारे लोग बहुत जल्द इंटरनेशनल आर्बिटर बने और हमारे वर्क फोर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू धर्मेंद्र भाई। आई थिंक हमारे आज के कोर्स का पहला सेशन काफी अच्छा रहा। सारे आर्बिटर्स को जो प्रैक्टिकल बातें आपने बताई, आई एम श्योर दे विल हेल्प देम क्वाइट अ लॉट। एंड आपको एक और चीज बताना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई कि ये पूरे प्रोग्राम के बाद में हम लोग एक ग्रेडिंग एग्जाम लेने वाले हैं। तो इन सबको ग्रेड करके और आपको चुनिंदा आर्बिटर जरूर हम भेजेंगे फीडे या AICF लेवल तक, जो भारत का भी नाम जाके आगे रोशन कर पाएंगे। तो ये एक काफी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। और आपने राइटली कहा अभिजीत कुंटे जी के बारे में, तो मैं एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि फैन क्लब में हम लोग भी सारे लाइन में ही है। तो शुक्रिया धर्मेंद्र भाई आपके मार्गदर्शन के लिए।
तो मूविंग फॉरवर्ड मैं कोटी भास्कर जी से कहूंगा अपने 2 शब्द कहे और सारे जो आर्बिटर कोचेस और पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनका हौसला बढ़ाए। कोटी भास्कर जी। यस, सो सभी पार्टिसिपेंट को मैं कांग्रेचुलेट करूंगा कि इन्होंने इतनी संख्या में पार्टिसिपेट किया है और आगे जो चेस इंडिया तो लीड करना है विश्व में, तो इसके लिए इसकी बहुत जरूरत है। और ये तो मीडिएटर है, आर्बिटर की, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेकर डिसिप्लिन से लेकर सभी हैंडल करता है। और अभी जो ये हाइब्रिड सिचुएशन आएगा उसमें तो और टेक्निकलिटी और को भी बढ़ेगा, तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी था। तो मैं सभी ये ऑर्गेनाइजर्स को और ये आर्बिटर को, पार्टिसिपेंट को बधाई देता हूं और आगे चेस बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा उपयोग होगा, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद कोटी भास्कर जी। नरेंद्र फिरोदिया जी भी हमारे साथ है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। अहमदनगर जिला, जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है, उनको हैंडल करते हैं। नरेंद्र जी, आप शुभकामनाएं और थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे प्लीज। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सबसे पहले तो मुझे लगता है काफी मार्गदर्शन हो गया है। मैं धर्मेंद्र कुमार जी का प्लस AK वर्मा जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने आके इस आर्बिटर कैंप को आज के इस दौर में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोविड से पिछले 1 साल से सारे जितने भी एक्टिविटीज थी चेस की वो धीरे धीरे बंद हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र चेस ने और जो सपोर्ट AICF ने दिया है उसके वजह से जो ऑनलाइन एक्टिविटीज चालू हमने रखी है, इसके वजह से प्लेयर्स का तो फायदा हुआ ही है, लेकिन ये आर्बिटर कैंप से, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे सभी की, ये आर्बिटर जब तैयार हो गए तो इसके आगे जब व्हेन वी विल ओपन फ्रॉम दिस पेंडेमिक वर्ल्ड, तो तभी इसका फायदा सबसे ज्यादा होगा। महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ जी का हमेशा ही 1 स्टेप आगे जाने का एक विजन रहता है, और इसमें अभिजीत की जो साथ है, जैसे आपने बताया सर, तो हम सभी अभिजीत के फैन हैं। He always thinks beyond chess, and I am thankful to everyone who has participated. This is a very good opportunity. आज के इस लॉकडाउन में this is the best opportunity to get trained for this arbiter camp, and I wish all the best to all the participants, and I thank you for everyone for coming and guiding us. Thank you. Thank you so much नरेंद्र जी। हमारे चेस वॉरियर बिलारे जी भी है साथ में, ओल्ड टाइमर है, उन्होंने काफी सारे हम लोग जैसा इंग्लिश में वो एक बोल है, काफी मॉनसून्स देखे हैं, काफी विंटर्स देखे हैं चेस के। तो बिलारे जी प्लीज आप 2 शब्द कहिए। आप म्यूट हो बिलारे जी, तुम्ही म्यूट वर आहात। महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेला सध्या खूपच चांगले दिवस आलेले आहेत असं मला वाटतंय, कारण एवढी चांगली ऍक्टिव्हिटी आपण सगळेजण करत आहोत। आणि खास करून मयूर साहेब तुमच्या अध्यक्षतेखाली, आणि चितळे साहेब आहेत, फिरोदिया साहेब आहेत, आपले अनिरुद्ध देशपांडे आहेत, अशोक भाऊ आहेत, आणि डॉक्टर परिणय फुके, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मला वाटतं आता महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेला खूपच चांगले दिवस आलेले आहेत। आणि हा जो आर्बिटर कॅम्प आपण जो सगळ्यांनी राबवलेला आहे तो सक्सेस होईल, आणि ह्याच्यातून खूपच आर्बिटर तयार होतील। बऱ्याच लोकांनी आता हे सगळे जे आर्बिटर्स आहेत, हे आर्बिटर रूल्स आणि रेग्युलेशन तर शिकतीलच, परंतु एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट त्यांनी शिकायची आहे ती म्हणजे डिसिजन देताना त्यांनी इम्पार्शल राहून डिसिजन द्यायचं आहे। त्यांनी कधी असं कुठल्याही पार्टिसिपंटला फेवर मध्ये डिसिजन देऊ नये, त्यांनी ही गोष्ट रूल्स आणि रेग्युलेशन मध्ये मला वाटतं नाही शिकवली जात, परंतु त्यांनी मला गेल्या एवढ्या 30-35 वर्षाचा अनुभव आहे, मी कधी म्हणजे इम्पार्शल पार्सलिटी केलेली नाही। तर तसंच तुम्ही सुद्धा फ्युचर मध्ये लक्षात ठेवायला पाहिजे की कधीही डिसिजन देताना इम्पार्शल, जसे जजेस जसे जर तुम्ही पण एक जज आहात तिथे आर्बिटर म्हणजे, तर तेव्हा कुणालाही फेवर करू नका, आणि रूल्स आणि रेग्युलेशन तर तुम्ही सगळे पुस्तकामधून शिकणारच आहात। तर खरं म्हणजे आम्ही फार पूर्वीपासून असं
म्हणजे आता सिद्धार्थ साहेब तुम्हाला सांगतो की आमची अशी स्वप्न होती पूर्वी 30-35 वर्षापूर्वी जेव्हा आम्ही झेंडूमध्ये चेस खेळायचो त्यावेळेला की मोठे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आपल्याकडे आकर्षित झाले तर आपल्याला चांगले दिवस येतील, कारण तेव्हा परिस्थिती फारच वाईट होती फायनान्शियली वगैरे. आणि आज ते आलेली आहेत, तुमच्यासारखे चितळे साहेब आहेत, फिरोदिया सर आहेत किंवा अनिरुद्ध देशपांडे आहेत, अशोक भाऊ आहेत, परिणय फुके साहेब आहेत. हे सगळे लोक एवढे मोठे मोठे आपल्याकडे आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळेच आपण हे सगळे मोठे मोठे उपक्रम आपण राबवतोय. तर तुमचे सगळ्यांचे पण म्हणजे धन्यवाद. आणि जे काही पार्टिसिपंट आलेले आहेत, म्हणजे मला वाटतं हा तर एक रेकॉर्डच आहे की 180 पार्टिसिपंट्स आलेत ते. तर त्या पार्टिसिपंटना पण मी शुभेच्छा देतो आणि हा कॅम्प अत्यंत यशस्वी होईल आणि ह्याच्या पुढे पण महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटना तुमच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली आणखीन म्हणजे मोठे मोठे उपक्रम राबवेल असा मला विश्वास आहे. तर थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू बिलारी जी. एंड आपने जो कहा वो जरूर हम करेंगे और नए नए उपक्रम भी जरूर करेंगे महाराष्ट्र में. एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात बिलारी जी ने जो कही दैट विदाउट फियर और फेवर, तो आर्बिटर का काम जज जैसा है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो धर्मेंद्र भाई वर्मा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा टू ऑफिशियली इनॉग्रेट द सेशन टुडे so that our trainers can then start the session. तो जी बिल्कुल, वर्मा जी आप है ना? हाँ, म्यूट पे है वर्मा जी. हाँ हाँ धर्मेंद्र जी, जी जी. हाँ, तो हाँ। ऑफिशियली आप इनॉग्रेट करने की. चलिए हम लोग इस आर्बिटर कैंप के औपचारिक शुरुआत की घोषणा करते हैं. थैंक यू सो मच. हाँ, हमारी शुभकामनाएं. तो चलिए सारे आर्बिटर्स को ऑल द वेरी बेस्ट. एंड जाने से पहले मैं निरंजन गोडबोले जी से दरख्वास्त करूंगा सारे उपस्थित डिस्टिंग्विश गेस्ट्स का और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स करें. On behalf of Maharashtra Chess Association, I thank all the dignitaries present today, especially Kumar ji, A.K. Verma ji, जो आपका बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया, उसके लिए थैंक्स वेरी मच. हमारे महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट्स नरेंद्र फिरोदिया जी, गिरीश चितले जी, कोटी भास्कर जी और भिलारी जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं. और ऑल पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, sir. थँक्यू. Thank you and all the best. sir.